this was the first time in the history of warfare कि तकरीबन 112 जहाज दोनों साइडों के, इंडियंस के ऑब्वियसली वो 80 के करीब थे, बाकी पाकिस्तान के थे, they were in the air with modern technologies, the most modern technologies that are used in the world, PVRs and radars. On both sides. On both sides, and EWs and jammers and what have you. Everything was being used as an integrated battlefield. The airspace was the battlefield. इसको कहा जा रहा है कि बड़ी अच्छी डॉग फाइट थी, मतलब हिस्ट्री की डॉग फाइट इसको कंसीडर किया जा रहा है कि बेस्ट हिस्टोरिक मोमेंट. एंड पाकिस्तान एयर फोर्स, Allah be praised, they performed exceptionally well, professionally, every which way you look at it. Indians were surprised, and their top of the line aircrafts were down. Even the West was surprised. So from there the situation started to build. और अब जो थे, people started getting interested कि this is going in a very different direction, because दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में जंग जो है, इट इज स्टूपिडिटी. एज आई हैव बीन सेइंग इट बिफोर आल्सो, इट्स अ फॉली. बट सिंस भारत ने फैसला किया हुआ था कि दे आर ऑन दिस मार्च ऑफ फॉली, सो दे वेंट अहेड विद इट. फिर उन्होंने देन दे स्टार्टेड एंगेजिंग विद ड्रोन्स. ये भी आपको बता दूं कि ये very modern Israeli drones were being used. All of them were Israelis. All of them Israeli drones, and they were being used against several targets. कुछ military थे, कुछ हमारे civilian targets थे. But alhamdulillah, almost all the drones were shot down. 77 plus. जी, some by soft kills, some by hard kills. उनको भी गिरा लिया. And then last night, I think the Indians had this feeling that Pakistanis are going to respond, because उनके मिलिट्री को पता ही हमारा डॉक्ट्रिन है कि हमने ये जो आपने डिटरेंस को तोड़ने की कोशिश की, हमने इस डिटरेंस को रीएस्टैब्लिश करना है विद फुल फोर्स. बिल्कुल ठीक. एंड उसके लीगल जस्टिफिकेशन है पाकिस्तान के पास. यू अटैक्ड अस illegally, immorally, you killed our civilians, and you expect, the world expects कि पाकिस्तान अब बैक ऑफ कर जाएगा. पाकिस्तान कभी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. एंड पाकिस्तान मिलिट्री then struck back this morning. Alhamdulillah, it was one of the best strikes. इस तरह की तो हम सर हमने कम से कम रात के अंधेरे में हमला नहीं किया डरपोकों की तरह. In modern world that may be not relevant anymore, because the battlefield is lit up with other things. So being a professional, I will not take that. लेकिन doing this, इस तरह की तो हम अपनी normal exercises में भी we did not, हम करते होते थे तो हम कहते थे कि this will have some resistance, but it was done marvelously by PF, Pakistan Army's missile force and air defense. तो Indians ने, by the way, they launched their missiles. उन्हें अपने cruise missiles launch किए, and most of the cruise missiles were neutralized and destroyed by Pakistan air defense. So now this was a big shock. This was a shock, and आपने उस shock का effect देख लिया, because 24 targets were neutralized in a matter of minutes. And उनकी तरफ से 24 मिसाइल लॉन्च किए गए. नहीं, उनकी तरफ से, हमारी तरफ से जो टारगेट्स 24 मिलिट्री टारगेट्स वर टेकन डाउन. उनके सारे फॉरवर्ड एयर बेसेस, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, इंक्लूडिंग टॉप नॉच S-400 डिपोज भी डिस्ट्रॉय किए गए. सॉरी, उनके कई डिपोज भी डिस्ट्रॉय किए गए. देयर एमुनिशन डंप्स, देयर मिसाइल साइट्स एंड S-400 आल्सो. तो ये जब सारा कुछ हुआ, साथ देयर वाज अ ह्यूज साइबर अटैक लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान. Their military satellite was jammed. So this was a complete surprise for them. They did not expect this. Wrongly, they should have expected this. सर लेकिन मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अब ये S-400 नाम सुने लगता है जी बहुत पैसा, अरबों डॉलर की मतलब इकोनॉमी है इंडिया की. ये S-400 के गुब्बारे में से मिनट में हवा निकल गई. राफेल की बात करें तो फ्रांस का सर जो है वो शर्मिंदगी से झुक चुका है कि उन्होंने राफेल को भी बदनाम कर दिया. तो या तो ये है कि इक्विपमेंट मौजूद है, चलाना नहीं आता, या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो अपना मेड इन पाकिस्तान इक्विपमेंट इस्तेमाल किया उसने इनको उड़ा के रख दिया. देखिए, मैं ये तो बिलीव नहीं करता कि उनके पास इक्विपमेंट हो एंड दे आर नॉट ट्रेन्ड टू यूज इट. दे आर फुली ट्रेन्ड. अपने एनिमी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ना ही ओवर एस्टिमेट करना चाहिए. सो गिव द एनिमी हिज ड्यू. दे आर ऑल ट्रेन्ड, दे केम वेल ट्रेन्ड, बट they met a more professional force. They met a more technologically advanced force, जिसकी शायद उनको ख्याल नहीं था. पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बहुत सारी इंडिजिनसली डेवलप हुई हैं, और इन मैनी डोमेन्स. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज अ स्पेशल वॉरफेयर. जिससे आपने उनके रडार्स जैम कर दिए, जिससे आपने उनकी कम्युनिकेशन जैम कर दी. वो सारे एलिमेंट जो है, ज़ाहिर है हमारे भी दुनिया में दोस्त हैं, उनकी कोलैबोरेशन से हुई हैं. एंड द चाइनीज ऑब्वियसली have helped us over a period of time. So this was a shock. But the most important thing is now the world gets completely baffled, because iske baad the only option left is a full-scale war, which is just not possible between two nuclear neighbors.